आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने जाना था डॉक्टर देबाशीष मोहंती से NII यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में। आज की इस कड़ी में हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर देबाशीष मोहंती, और आज हम सर से बात करेंगे सर की पर्सनल अचीवमेंट्स, रिसर्च और एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आज की इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले जानेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी डॉक्टर मोहंती के बारे में। I am Devashish Mohanty. I did a PhD in molecular biophysics from Indian Institute of Science in 1995, and I became director of this institute in 2022. Subsequently, I worked in Hebrew University of Jerusalem and the Scripps Research Institute in California for a total of about 4 years. And in 1998, I joined this institute, National Institute of Immunology, as a scientist. And I started a research group in the area of bioinformatics and computational biology. So over years, our research has expanded in many different directions. Several people have done PhD. डिग्री मैंने फिजिक्स में किया था। मैंने जब IIT कानपुर में फिजिक्स किया था तो हमने पढ़ा, एक इंडियन साइंटिस्ट है GN रामचंद्रन, वो बायोफिजिसिस्ट थे। वो फिजिक्स का आइडिया यूज़ करके वो प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम किए थे। तो मेरे को वो बहुत इंस्पायरिंग लगा। मैंने सोचा कि आई वांट टू वर्क इन दैट एरिया। आई वेंट टू IISc Bangalore टू डू माई PhD. In my PhD, since I came with a training in physics, I used mathematical modeling, computer simulations to address questions on protein structure, nucleic acid structure, how proteins are binding to drugs. So this is area which subsequently, that time the term bioinformatics had not come in the literature. Subsequently, this was called biophysics at that time, but with more genome sequence and other things come, like in physics you use fundamental principles, but in bioinformatics you use lot of data. So that is why, so my research area subsequently has become bioinformatics. So हमने मेरे रिसर्च में जो प्राइमरी चीज़ हमने किए हैं, तो देर आर मेनी कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट्स हमारा सेल, एनी बैक्टीरिया बनाता है। जो MTB का सेल वॉल है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और कुछ आप काफ़ी बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक बनाते हैं, जो बैक्टीरिया, वो भी आप आइसोलेट करते हैं। बट आज के डेट में जब जीनोम सीक्वेंस अवेलेबल है, आप जीनोम सीक्वेंस को एनालाइज करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा टाइप का एंटीबायोटिक बनेगा। तो उस एरिया में जो कंप्यूटेशनल मेथड्स चाहिए और मशीन लर्निंग जो है, वो मेरा रिसर्च में वही हम डेवलप किए हैं, सम ऑफ द मेथड्स फॉर दिस थिंग। व्हिच अभी हम उसको यूज़ कर रहे हैं माइक्रोबायोम एनालिसिस के लिए। जैसे हमारे पहले वो सोचा जाता था कि आपका जो भी डिजीज सिम्टम्स इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर जीन्स, तो आपके कोई डिजीज ये है तो देयर विल बी सम जेनेटिक चेंजेस और समथिंग। बट अभी काफ़ी डिजीज आ गए हैं, आपके दो इंडिविजुअल के जीनोमिक लाइक जीनोम सीक्वेंस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बट समबडी इज हेल्दी एंड अनदर पर्सन इज नॉट हेल्दी। सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द
microbiome profile, like microbiome in our gut, microbiome in our skin, microbiome and many body parts are different. And this gene environment interaction जो बोलते हैं कि because genetics decides a lot of things, but environment also has a role in it. And microbiome is the medium through which gene, because microbiome can change with your diet. A person who is eating like a vegetarian food will have one type of microbiome. Somebody who is eating a non-vegetarian food or other types of food can be a different microbiome. तो ये सब एनालिसिस के लिए इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मशीन लर्निंग का काफ़ी यूज होता है, तो वो सब चीज़ हमने अपने रिसर्च में यूज़ की। सर की रिसर्च स्टेम और कॉमन मैन के लिए कैसे यूजफुल है, आइए जानते हैं। वो कॉमन मैन के लिए ऐसे रिलेटेबल है, जैसे मेरा रिसर्च में मैंने आपको जो बताया, आपने जो पहले जैसे आपको कुछ जैसे पेनिसिलिन आपने जो आइडेंटिफाई किया था, और मेनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो ड्रग डिस्कवरी में रिसर्च हुआ है, वो उसको एक्टिविटी गाइडेड स्क्रीनिंग ये करते थे। आप और कुछ बैक्टीरिया लेके जाओगे, इस बैक्टीरिया से कोई मॉलिक्यूल बनता है और दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है, तो उस बेसिस पे आप चाहते थे कि यहाँ पे कोई नया एंटीबायोटिक है और समथिंग। बट इस टेक्निक यूज करके you cannot find new antibiotics. That is why the antibiotic pipelines have already dried down or something. Like new antibiotics is not coming by like activity guided screening. But now that हम genome sequence करते हैं, microbiome का meta genome sequencing करते हैं, इस information को हम use करके हम predict कर सकते हैं कि ये this type of bacteria which is present in this unique niche, or it is one of the marine bacteria which is making some new molecules. So once you predict it using a computational methods, then you can design experiment to test it. और आपके जो प्रोटीन स्ट्रक्चर आपने जो गूगल का अल्फा फोल्ड प्रेडिक्शन बताया, तो ये आजकल जो AI/ML की वजह से बायोलॉजी में कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज हर केस में आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। तो आपके पास इतने प्रोटीन्स हैं, सबका 3D स्ट्रक्चर आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी NMR में करेंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो टोटल नंबर ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स व्हिच आर सॉल्व्ड एक्सपेरिमेंटली अभी तक सिर्फ 2 लाख होंगे, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हमारे डिफरेंट बैक्टीरियाज में है, डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी में है, इट विल बी मिलियंस, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूज करके आप ये जो 2 लाख प्रोटीन स्ट्रक्चर विच हैज कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यू कैन रिलेट इट टू ओके द अदर बैक्टीरियाज प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नॉट नोन, बट ये इस प्रोटीन जैसे सिमिलर होगा। तो यहाँ पे कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन का काफ़ी, जो गूगल ने जो एक प्रोग्राम अभी अल्फा फोल्ड बनाया, ये ऐसे ही एक प्रेडिक्शन टेक्निक है, और इस प्रेडिक्शन टेक्निक का एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू यूज ऑफ मशीन लर्निंग। सर की रिसर्च ग्लोबली कहाँ स्टैंड करती है, आइए जानते हैं। There are some groups, maybe 3 or 4 research groups will be globally who are working on similar types of computational methods which my research group makes. अब जानेंगे सर के अचीवमेंट, पेटेंट और रिसर्च पेपर के बारे में। Yeah, of course, there are many research papers we do regularly publish or something. But some of the papers which more relate is which are cited very highly. So some of ये जो computational methods के बारे में बताया, ऐसे कुछ papers हमने publish किए थे, वो which are cited very highly, how to predict metabolite from the genome. और अभी हम एक recent paper publish किए हैं जो माइक्रोबायोम से एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड प्रेडिक्ट करता है। जैसे कोई पर्सन हेल्दी इंडिविजुअल है, यू हैव ऑल द गट बैक्टीरिया विल बी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, देयर वोंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया वोंट बी देयर। सो द वे ये बैक्टीरिया ऐसे बना हुआ है, ये पैथोजन को अलाउ नहीं करेगा ग्रो करने के लिए। ये क्यों नहीं अलाउ करता है? जो हेल्दी बैक्टीरिया में कुछ प्रोटीन्स है व्हिच आर एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स। अगर कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया आता है तो ये इसको ये एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड यूज करके उस बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। दैट बैक्टीरिया गेट्स किल्ड, बट ऑफ कोर्स ओनली इफ यू गेट इट इन ह्यूज डोज, लाइक यू गेट एक्सपोज्ड, देन योर बॉडी से। बट अदरवाइज वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, viruses. Our body is able to fight. One is using immune system, and other in using our microbiome. Our microbiome will not allow the other things to grow. तो अगर आपको न्यू एंटीबायोटिक डिस्कवर करना है तो there are 2 types of drugs. Like some drugs are small molecules, they go and target another protein. Okay,
तो उसमें जो भी जैसे कोविड में था आपका कोई आपने ये किया जो इट विल टारगेट ए प्रोटीएस कोई ये था, और ये रेमडेसिविर एक ड्रग था, इट विल टारगेट आरडीआरपी। बट आरडीआरपी को वो स्मॉल मॉलिक्यूल जाके रेमडेसिविर बाइंड करता है, बट वायरस ने जहाँ पे बाइंड करता है वायरस उस अमीनो एसिड को म्यूटेट कर देगा, तो रेमडेसिविर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ड्रग रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक, बट इसके वजह से आप ड्रग ऐसे बनाएंगे जो मेम्ब्रेन को टारगेट करेगा। तो एक बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटीन मेम्ब्रेन नहीं बनाता है, कम से कम 20-25 प्रोटीन होंगे जो एक पाथवे में मिलके टुगेदर बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो अगर आप कोई ड्रग बना रहे हैं मेम्ब्रेन को टारगेट करने के लिए, तो बैक्टीरिया कैनॉट म्यूटेट इजीली 20 डिफरेंट प्रोटीन्स टू चेंज इट्स मेम्ब्रेन। So that is why the drugs which target membranes and usually will not develop resistance, and antimicrobial peptides are such things. These peptides are targeting membranes, so they are like antibiotics, but they won't develop resistance. So this is ये जो paper हम अभी publish किए हैं is one of the important work, and we are also trying to do experiments to validate it. Like some of the antimicrobial peptides which you are identifying from the microbiome, if it is going to kill what is called the escape pathogens. There are like Klebsiella, E. coli, there are this which are AMR is a big problem everywhere in the country. Okay, I don't think I have received much awards. That is, I have got this National Bioscience Award of the Department of Biotechnology. That is one of the awards I have got. Then there was some award called Kurukshetra University gives a Rajiv Goel Prize, which I have got, and plus ये जो fellowships of the academies and all those are got. My first award in fact was the award which I came from my home state, Samant Chandrasekhar Award, which is a award given by Orissa government to scientists who are working outside Orissa. So this I had got many years back. That was probably my first awards, and I value it very much, even if it is the thank you. अभी आपने सुना डॉक्टर देबाशीष मोहंटी को और जाना उनके कार्यों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।